इन्वेस्टर को अगर आप देखते हो तभी उसने 2022, 23, 24 अलग अलग फेजेस देखा, स्पेशली कोविड के बाद कुछ अलग ही देखा। सो 2025 में आप उसको क्या रिकमेंड करते हो कि सोफिस्टिकेटेड बन जाए या सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग करे? 1 करोड़ का जो आपका रिटायरमेंट किटी है वो आज के इन्फ्लेशन कॉस्ट पे है। सो अभी से 20 साल बाद वो 1 करोड़ तो शायद 30 या 40 लाख रुपए रह जाएगा। सो हाउ डज अ इन्वेस्टर टैकल्स this problem? But don't you think that insurance has done tremendous work in financializing the assets of Indians? आज के टाइम में मतलब पास्ट कपल ऑफ इयर्स हाईली इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया। अगर कोई स्कीम 50,000 करोड़ क्रॉस कर लेता है तो द AMC कैन लॉन्च अ न्यू स्कीम। इट विल हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग मनी इन द ओल्ड स्कीम। AI जो काफ़ी हद तक आ चुका है हमारी लाइफ में इन डिफरेंट एरियाज, वो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। ये हमारा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नेशनल स्पोर्ट बन गया है F&O खेलना, और एक तरीके का वो जुआई है। 90% लोग पैसे लूज करते हैं। जेन स्ट्रीट ने आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन इंडस्ट्री की किसी एंटिटी ने 4,600 करोड़ जमा कर दिया ये कहने के लिए भाई मुझे तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है। एक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी एक उबर ड्राइवर के साथ, जिसने साल में कुछ 1.5 लाख कमाए थे गाड़ी चला के, रोज मेहनत करके, और उतने ही F&O में गंवाए थे। ये प्रीमियम हाइक्स देख के लोगों का थोड़ा सा विश्वास उड़ जाता है फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कि आप जितना जल्दी हो सके उतना ले लो, लॉक इन कर लो वो पॉलिसी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर भी जो हाइक्स हो रहे दे आर लेस डैमेजिंग देन अगर आप, मैं समझता हूँ कि दूसरा एरिया जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस विल नेवर गो अवे इज। Savvy Savers, welcome. Welcome to the podcast. Today we have Neil Borate. He heads personal finance at Mint. Now Neil is very famous for his views on personal finance, insurance, mutual funds, and he is very vocal towards investor education and investors' interest protection. Neil, welcome to the show. Thank you, love. मैं कुछ ज़्यादा ही vocal हुआ, I think. No, it's good because so before I wanted to ask a question that what brought you to personal finance, because so far as I understand, your parents were doctors, you have done LLB also. So what brought you to personal finance? That's exactly what brought me. My parents were ripped off by various bank RMs. They were missold a whole bunch of things. And they had no clue and nobody on their side to help them with this. So that's the real reason. Great. So tell me one thing. Now that when you have come towards this side of business and you see, a completely different aspect of managing money. So what are these common mistakes which still investors making in personal finance? I think couple of them. One is कि आज के टाइम में मतलब past couple of years highly influenced by social media. जो भी चलता है, जो ट्रेंड चलता है वो लोग करते हैं. And that is related to performance. मतलब whatever performs in the last 1 year also trends on social media, also gets blown up by influencers. इस फंड ने 40% रिटर्न दिया, 60%, whatever. The other kind of error is कि they are not able to identify when something is being missold. और जिस तरह से insurance का mis-selling होता है up and down the country, people still fall prey. I agree, but tell me one thing. See, I have worked with LIC, not insurance but mutual funds, and I have seen from distance. I have seen how LIC actually operates, and LIC is governed by Government of India. Rules and regulations are set up by them. But don't you think that insurance has done tremendous work in financializing the assets of Indians? To an extent, yes. I mean, if you think back 20-30 years ago, it was a much needed thing. But now I think it has lived past its utility. We have a good enough mutual fund industry, technology. अब ज़रूरत नहीं है. Insurance buy करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं. मैं कह रहा हूँ endowment policies की ज़रूरत नहीं है. जो policies insurance और investment को mix करती है उनकी ज़रूरत नहीं है. So people should only stick to term plans. Term insurance, yes. Term insurance होता क्या है? Sorry, simple question. So term insurance only pays out when somebody passes away to their family, और उस reason से बहुत ही premium बहुत ही कम होता है. This goes contrary to Indian psychology कि अरे तो फिर benefit क्या हुआ, मैंने इतने साल मिलेगा क्या वापस. बट उतनी मैच्योरिटी आइदर खुद समझनी चाहिए, नहीं तो पीपल इन फाइनेंशियल सर्विसेज शुड एजुकेट कि सर आप उतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में देख के तो डाल के तो देखो.
So yes, what you say is right. Maybe insurance is has become a misnomer or maybe a most missold product in the country. But then somewhere that investor psychology and behavior is also responsible for that mis-selling, probably. No, I think the incentives are जहाँ पे पॉलिसी में 30, 35, 40% कमीशन रहता है, of course it will be missold big time. That's what's happening. They have to equalize the commissions between mutual funds and insurance. Okay, then what about the fact that still India is among the lowest penetrated even in terms of insurance? Yeah, so I'm talking about life endowment, which is the issue. Term का बिल्कुल होना चाहिए penetration. Health का तो उससे ज़्यादा होना चाहिए. So I have a very different outlook over there. No, why I'm asking this question, even after giving 30% commission, insurance has not reached to masses. तो कहीं ना कहीं ये 30% भी फेल कर गया क्या? हाँ, मतलब देने के बावजूद भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है तो लोगों तक नहीं पहुंचा. You spoke about this health insurance stuff. Now tell me, I think I've seen a lot of articles by you also on various health insurance. I have also seen those things. I have met investors. So ये तो एक मेज बनता जा रहा है and it's like becoming a vicious cycle. Every year insurance premium keeps going up and especially the elderly people, keeps getting out of that net because of high premium and all those things. So what is required to be done by an individual investor कि वो उसको उस नेट के बाहर भी ना जाए और सेफ्टी में रहे भी हो? ये प्रीमियम हाइक्स देख के लोगों का थोड़ा सा विश्वास उड़ जाता है फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कि आप जितना जल्दी हो सके उतना ले लो, लॉक इन कर लो वो पॉलिसी. लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर भी जो हाइक्स हो रहे दे आर लेस डैमेजिंग देन अगर आप रुको और हाँ लेट लाइफ में लेते हो. तो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, as soon as possible. So and you're happy with the way regulation is moving around that health insurance space? Not fully happy. दूसरा एक एडवांटेज जो है कि why you should take it early is because pre-existing diseases के जो conditions होते हैं, waiting periods होते हैं, वो normally 3 years होते हैं. तो you're out of that period before you start falling ill and things start happening to you. जहाँ तक रेगुलेशन की बात है, I honestly think that all regulators should follow the precedent that SEBI has set कि आप इंडस्ट्री के लोगों को कंसल्ट करो, आप पब्लिक representatives को consult करो, people who are activists, people in the media, they should also be taken into confidence. I have not yet seen the insurance regulator doing that, having a conversation with, opening up consultations, actively approaching people, and somehow there is a gap. Now you that mentioned म्यूचुअल फंड रेगुलेटर, तो बहुत सारे कंसल्टेशन पेपर आते ही रहते हैं. अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि 2018 में प्रोबेबली एक बहुत ही वाइड स्प्रेड ओवरऑल हुआ था, रीकैटेगराइजेशन हुआ था, बहुत सारी नई कैटेगरीज भी निकल के आ गई थी. अभी सेबी ने वापस एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट कर दिया है. उसके पहले सेबी ने एक और प्रोडक्ट rather अप्रूव कर दिया है, SIF. So what would you say about SIF and this new regime or new consultation paper which SEBI has floated? How will it actually help investors? जी, तो पहले SIF की बात करते हैं. SIF का इंटेंशन ये था कि जो लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट्स है या डेरिवेटिव्स यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तक पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज मिनिमम टिकट साइज ऑफ 1 crore इन AIF. नाउ वो जो डेमोक्रेटाइजेशन है दैट्स अ गुड ऑब्जेक्टिव. हाउ द इंडस्ट्री यूजेस दीज रेगुलेशंस, वेदर दे कंस्ट्रक्ट हेल्दी प्रोडक्ट्स और वेदर दे use it just to gather AUM, that needs to be seen. But even if they do something as simple as a long short fund well managed, आप एक basic principle किसी को दे सकते हो और benefit दे सकते हो कि market कहीं भी जाए आपके returns हम कुछ हद तक save करेंगे और कुछ हद तक दे पाएंगे. So I'm looking forward to SIF. Let's see how the industry evolves around it. तो आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को SIF की ज़रूरत है? जस्ट अ क्वेश्चन, मे बी रिटेल या HNI को? मैं समझता हूँ कुछ HNIs को उसका बेनिफिट हो सकता है. ओके. मेजॉरिटी लोगों को आई वुड से नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं, बिकॉज उनके लिए पोर्टफोलियो ऑफ 3-4 फंड्स विच कवर द एसेट क्लासेस, इक्विटी, गोल्ड, डेट, ओवरसीज इक्विटीज इनफ. This is not fulfilling any purpose, but
मे बी फॉर सम HNIs जो ये चीज़ थोड़ा बहुत समझते हैं, आगे बढ़ चुके हैं हाँ, उसमें. They moved up the ladder of investments and they understand this. they can experiment a They little can bit. experiment. So even तो HNIs को तो फिर वो PMS और AIS पे भी काम चल जाता है, जहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ करते हैं. तो 10 लाख का टिकट साइज जो है ये फिर HNIs के लिए अल्टीमेटली है तो रिटेल को टारगेट करने के लिए, मे बी लिटिल हायर देन रिटेल. सो रिटेल प्लस, रिटेल प्लस, तो ये इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी कुछ भी प्लस ऐड कर दो. So this is like a retail plus, but yes, I am also hopeful कि the product category evolves very well and fund managers do justice to this kind of product. नहीं, और उसमें टैक्सेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है, हाँ. क्योंकि AIF में 42% tax deducted by the fund Yeah. is going to killing the Is returns, killing, which is why the yes. industry has not taken off Cat 3 Yeah. AIF. If SIF can deliver something similar but with 12.5% taxation, why not? हाँ, why not? So that will be a good. In fact, so just to compare, so ULIPs में ऐसे provisions होते हैं where actually move between different asset class, equity, debt, वो सब move करते हो और taxation equity का ही लगता है आपको actually. So this is हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ के कॉस्ट तो अलग लेवल को थे. हाँ. वैसे NPS में भी वो आप कर सकते हो और उसके कॉस्ट भी लो है. Yes, yes. Now coming to this new recategorization exercise, तो ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे क्या कि है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और होने वाला क्या है? तो ये पहला रीकैट है आफ्टर 2017 के एंड में जो हुआ था इंडस्ट्री वाइड. Yes. और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मतलब दैट सर्कुलर इज मैसिव. लेकिन मुझे सबसे दो जो इंटरेस्टिंग लगे, तो पहला वाला ये था कि अगर कोई स्कीम 50,000 करोड़ क्रॉस कर लेता है तो द AMC कैन लॉन्च अ न्यू स्कीम. इट विल हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग मनी इन द ओल्ड स्कीम. ये नए प्रोविजन में, नए कंसल्टेशन पेपर में, और नई स्कीम में वो पैसे लेना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ न्यू फंड मैनेजर भी हो सकता है, सेम वाला नहीं भी हो सकता है. मुझे ये काफ़ी हानिकारक प्रोविजन लगता है, क्योंकि क्या होगा उससे कि जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम के इन्वेस्टर्स है, वो ऑर्फन्स बन जाएंगे. उनमें इंटरेस्ट रहेगा नहीं AMC को. और एक काइंड ऑफ एसेट गैदरिंग का एक नया तरीका हो जाएगा कि चलो कुछ नया मार्केट, नई साड़ी दिखा रहे, ये वाली देखो, पुरानी क्यों देख रहे हो आप? नहीं देखो. और इसका कोई रीज़न नहीं था. अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ स्कीम्स इतने बड़े हो गए कि स्मॉल कैप्स नहीं ले पाएंगे, तो ये इसकी ज़रूरत है. बट अगर आप देखो रेगुलेशंस में, तो वो जो लिमिट्स है कि एक कंपनी का कितना हिस्सा एक फंड ले सकता है, वो AMC लेवल पे है, ना कि स्कीम लेवल पे है. तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल बनती नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, वहाँ पे लगेगा. AMC लेवल पे तो लगेगा. यस, स्कीम लेवल पे नहीं लगेगा, तो AMC लेवल पे लग जाएगा. हाँ. तो हम सबको एक्चुअली उस पर फीडबैक देना चाहिए. एक पब्लिक कंसल्टेशन चल रहा है कि प्लीज ये मत करो, वील अदरवाइज ऑल बी स्टक इन दीज ओल्ड स्कीम्स एंड ऑर्फन्ड काइंड ऑफ. उसमें एक और भी प्रोविजन आया है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. हाँ, रीट्स और इन्वेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. और इससे डेफिनेटली वो काइंड ऑफ लिमिट्स बढ़े तो और पैसा उसमें आ सकता है. अनफॉर्चुनेटली सप्लाई कम है, तो 5 ही रीट्स है, लिस्टेड रीट्स है. और अभी SM रीट, स्मॉल एंड मीडियम रीट्स की नई कैटेगरी जो आ रही है, उसमें एक ही SM रीट लिस्टेड है और दूसरा आने वाला है. तो जब तक उसका सप्लाई नहीं बढ़ता, मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डालेगी. मुझे अभी कमिंग बैक टू इन्वेस्टर, सो इन्वेस्टर को अगर आप देखते हो तो 2025, अभी उसने 2022, 23, 24 अलग अलग फेजेस देखा, स्पेशली कोविड के बाद कुछ अलग ही देखा. सो 2025 में आप उसको क्या रिकमेंड करते हो कि सोफिस्टिकेटेड बन जाए या सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग करे? मैं समझता हूँ कि सिंप्लिसिटी ये किसी भी साल में इम्पॉर्टेंट है. ये तो बदलने वाली चीज़ नहीं है. एक सिंपल पोर्टफोलियो 4 to 5 फंड्स जिसमें आप ज़्यादा, और ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, हर कोई मेरे से अग्री नहीं करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्टर फंड्स है, थीमेटिक फंड्स है, कोई नीश प्रोडक्ट है, कोई महंगा सा PMS है, उसमें मत जाओ. सिंपल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डज द जॉब. अभी सोफिस्टिकेशन कहाँ आना चाहिए कि आपको सेलिंग के पीछे रीजंस क्या होते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है, वो आपको समझ आए. दिस इज सोफिस्टिकेशन, दिस शुड बी अंडरस्टूड. नील, एक बात बताइए, अभी हम ना टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ चुके हैं और
इतने सारे इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं चलता है कि उसको कितने फंड्स चाहिए और उसका फंड पोर्टफोलियो को बीट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये टेक का फ़ायदा कहाँ पे हुआ और इसको इन्वेस्टर कैसे टैकल करे? अभी तक तो हाँ, काफ़ी इन्वेस्टर्स को मतलब पता नहीं था या फिर कुछ गलत दिखाया जा रहा था किसी दूसरे बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके, एप्पल टू ऑरेंजेस। और क्या है, बुल मार्केट में कोई ज़्यादा केयर भी नहीं कर रहा था। रिटर्न जब तक आ रहे हैं तब तक सब अच्छा है। अब शायद वो पिक्चर बदलेगा अगर मार्केट काइंड ऑफ स्टैग्नेंट हुआ तो। और दूसरी चीज़ है कि एआई जो काफ़ी हद तक आ चुका है हमारी लाइफ में इन डिफरेंट एरियाज, वो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि आज अगर मैं अपना CAS कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट लेट्स से चैट जीपीटी में अपलोड कर दूँ या कहीं और अपलोड कर दूँ, तो मुझे बताएगा कि अच्छा ये वाला अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, फंड मैनेजर कौन है। तो फिर बात आती है कि व्हाई डू यू नीड एन एक्सपेंसिव PMS मैनेजर, व्हाई डू यू नीड एन एक्सपेंसिव वेल्थ मैनेजर। करेक्ट, कुछ रोल वो अलग बनता है फिर। सो फुली हियर AI विल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एज वेल। ऑलरेडी हो रहा है, मतलब मैं जो बातें करता हूँ लोगों से फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अभी से मुझे बताने लगे कि अरे हम तो पूछते चैट जीपीटी को कि विच स्टॉक्स वी शुड इन्वेस्ट इन, एंड वी हैव मेड अ पोर्टफोलियो फ्रॉम चैट जीपीटी और फ्रॉम परप्लेक्सिटी और whichever AI they like. It's a serious challenge for the industry, and I don't think anyone has really understood the gravity of the situation. Yes, I get this. In fact, to tell you about us, हम लोगों ने MF ऑनलाइन पे ना वो ऑप्शन दे दिया है इन्वेस्टर को, whether we like it or not, the moment investor uploads his cash, कहीं से भी अपलोड करे तो भी ना एक सीधा उसको स्नैपशॉट आ जाता है कि कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा फंड आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो AI कर देता है, बट मैं बताऊँ इसके आगे। तो फॉर एग्जाम्पल मे बी वन फंड हाउस, विदाउट नेमिंग अ फंड हाउस आई विल टेल यू कि वो फंड हाउस ही अच्छा नहीं कर रहा था, बट जब हम वेल्थ मैनेजर बनते हैं ना तो वी गेट टू टॉक टू देम, वी गेट टू मीट देम टू अंडरस्टैंड कि भाई कर क्या रहे हो आप। सो वहाँ पे ना ह्यूमन इंटरवेंशन आता है कि जैसे हमने शुरू में बात की ना कि भाई टॉप परफॉर्मिंग है उसमें इन्वेस्ट कर दो, वो AI आपको बता देगा कि इसने बहुत अच्छा किया, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। वो क्या नहीं बता पाएगा कि इसका यहाँ से साइकिल रिवर्स होगा कि नहीं रिवर्स होगा, बिकॉज यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू टॉक टू देम, व्हेन यू सी देयर पोर्टफोलियो, एंड आई थिंक दैट इज वेयर this AI will not be able to cater, and probably wealth managers will actually step in and fill the shoe. But yes, as you rightly said, अभी ना वो फी भी कमा के लेना पड़ेगा, पहले बिना मेहनत का आ रहा था एक्चुअली वो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट हैज़ टू बी अर्न नाउ। और मैं समझता हूँ कि दूसरा एरिया जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस विल नेवर गो अवे इज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, कि जो कस्टमर आपको 5-10-15 साल से पता है, Correct. जिनकी फैमिली पता है, सर्कमस्टांसेस पता है। Yes. AI, no matter how much I feed the AI, will never understand Absolutely. psychology. Absolutely. So आपने तो बताया वैसे कि भाई 3-4 फंड अगर लेगा तो काम चल जाता है, बट ये जो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, अभी शायद मेरे ख्याल से आपने एक और भी कहीं पे आर्टिकल किया तो उसमें आपने बताया कि भाई 1 करोड़ का जो आपका रिटायरमेंट किटी है वो आज के इन्फ्लेशन कॉस्ट पे है। सो अभी से 20 साल बाद वो 1 करोड़ तो शायद 30 या 40 लाख रुपए रह जाएगा। सो हाउ डज अ इन्वेस्टर टैकल्स दिस प्रॉब्लम, उसको क्या करना चाहिए वहाँ पे? आई थिंक द गुड न्यूज़ इज दैट वी आर इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारी रियल GDP ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट भी रियल रिटर्न्स दे रहा है। सो एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर इज डाइवर्सिफाइड, अगर उसको मान लो 10% भी CAGR आ रहा है, he will beat inflation. He has to just make sure कि कुछ basic mistakes ना करे, जल्दी से पैसे ना निकाले, कहीं सुपर रिस्की एरियाज में जहाँ पे पूरा कैपिटल निकल गया वहाँ पे पैसे ना डाले, should be fine. तो उसको इसको स्टिक टू हिज एसेट एलोकेशन, SIP हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते रहे, स्टेप अप SIP कर ले, और वो ही शुड बी एबल टू रीच हिज गोल्स 100%. एंड सॉरी, नो कैरी ऑन। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिया था कि क्योंकि आजकल बहुत क्यूरियोसिटी है कि रिटायरमेंट का वो क्या फिगर होना चाहिए, गोल्डन कॉर्पस वाला फिगर, तो फायर तो उसमें लिटरली इट्स 5 सिंपल स्टेप्स कि पहली बात आपकी करंट एक्सपेंसेस क्या है एनुअल, वो आप एस्टिमेट कर लो कि मान लो आप 10 लाख है, फिर आप जब रिटायर करने वाले हो तब क्या होंगे, तो आपको बस एक मैथ एक्सेल में या गूगल में जस्ट इन्फ्लेशन रेट लगा के देखना है।
सो मैंने वो कैलकुलेट किया था 13 लाख 5 साल में हो जाएंगे किसी के 5% इन्फ्लेशन लेके। फिर बात आती है कि अच्छा रिटायरमेंट के साल में अगर 13 लाख का एक्सपेंडिचर है तो फिर कॉर्पस का मल्टीपल क्या होना चाहिए, कितना बड़ा कॉर्पस होना चाहिए। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा थंब रूल है कि जितने साल आप जियोगे रिटायरमेंट में उतने मल्टीपल का वो होना चाहिए कि अगर आप 30 साल जी रहे हो तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 30, 40 साल जी रहे हो तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो उस एग्जाम्पल में 5.2 CR आ रहा था आंसर। और ये बड़ा कंजर्वेटिव रूल है क्योंकि ये अज्यूम करता है कि जो ग्रोथ होगी रिटायरमेंट के बाद कॉर्पस में वो पूरी तरह से इन्फ्लेशन कैंसिल आउट करेगा। नॉर्मली ग्रोथ पॉजिटिव रहती है बट दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। यस यस यस। सो इंडियन म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है या लोगों को ओवरसीज इंटरनेशनल फंड्स भी बाई करने चाहिए? 100% इंटरनेशनल डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हुए हैं जहाँ पे इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया लेकिन ओवरसीज़ ने किया है। लोग अभी शायद भूल गए या पता नहीं है, 1993 से और 2 से मतलब हर्षद मेहता बुल मार्केट से अगले 10 साल इंडियन मार्केट कहीं नहीं गया। और दूसरी बात है कि अगर आप पूरा ग्लोबल मार्केट का आप देख लो तो उसमें से इंडिया का शेयर बस 3% है। मतलब हम ग्लोबल स्मॉल कैप है और यहाँ पे लोग 99% इन्वेस्टमेंट एक ही स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए। ओके, सो आपने ना अभी दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो हर्षद मेहता का जिक्र किया, तो आपने एक बुक भी ऑथर की है राकेश झुंझुनवाला पे, और उनका ना वो फेमस है, उन्होंने टाइटन का स्टॉक बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, बाई कर लिया। इंडियन इन्वेस्टर भी उनको रेप्लिकेट करना चाहता है और रेप्लिकेट करने के चक्कर में करता है क्या है कि कोई भी ना ऐसा ऐप वो डाउनलोड कर लेता है जो बोलता है मैं म्यूचुअल फंड तो तुमको डायरेक्ट दूंगा बट स्टॉक्स में तुम जो चाहो कर सकते हो, और 5 रुपये का पैकेट देता है, और 5 रुपये के पैकेट में ये 5 रुपये का पैक है आपका, और 5 रुपये के पैक में आप जितना चाहो ट्रेडिंग कर लो। सो विल नॉट बिलीव, मैं एक कंपनी थी इसका IPO आने वाला था, उसकी एक पार्टी में मैं गया था। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे, बच्चे थे इन्वेस्टर्स, एक्चुअली टेक बच्चे थे वो, ऑब्वियसली एडल्ट थे बट यहाँ हमने ना इस फलाने केस का ये हमने पैक ले लिया है, हमको सिर्फ ना 500 रुपये लगते हैं। अच्छा, तो मैं बोला भाई ये या एक्स अमाउंट लगता है। तो मैंने बोला ये बता भाई कि आप कितना ट्रेडिंग करते हो और उसके कंपैरिजन में फीस कितना है। बोला नहीं ऐसे हमने नहीं देखा। उसने तो बोला तुम अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर लो। सो कमिंग टू दिस ट्रेडिंग पैटर्न, आप ये इसको कैसे देखते हो, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है? आपने इस पर बहुत स्टोरीज भी की है और मैं तो ऐसा बोलूँगा ना कि वो आंखों में आंसू डालने वाली वो स्टोरीज़ हैं। सो हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड वेयर डू यू सी आवर रिटेल इन्वेस्टर्स गोइंग, और वहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे उनको? ये हमारा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नेशनल स्पोर्ट बन गया है F&O खेलना, और एक तरीके का वो जुआई है। बिल्कुल 90% लोग पैसे लूज करते हैं। और जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज है फाइनेंशियल स्पेस में वो उसी के ऊपर कमीशन कमा के प्रॉफिटेबल बन गए हैं। यस। तो आपका बिल्कुल कहना सही है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लेयर्स ये फ्री म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं लेकिन उनका पैसा कहीं और से आ रहा है, ट्रेडिंग से आ रहा है, तो उनका इंसेंटिव यही है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स गेन हो उनके प्लेटफॉर्म। हाँ। इनफैक्ट एक तरीका जो ये अपनाते हैं कि कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको डीमैट अकाउंट में रखना चाहिए। हाँ, दिस अनदर प्रॉब्लम और अनदर इशू। सो यू नो आई जस्ट मे बी आई कैन यूज अ बिगेस्ट इंडियाज बस एग्रीगेटर, बिगेस्ट, जो आप बम्बई के सड़कों पे देखोगे, उसके प्रमोटर को मैं लास्ट वीक मिलने के लिए गया था। उसने बोला कि भाई लेकिन सरकार तो शायद कंपलसरी कर रही है डीमैट में, तो आप क्यों बोल रहे हो फिजिकल में रखने के लिए? सो हाउ डू यू सी, इज इट कि सरकार बोल रही है सारे के सारे चीज़ें तुम डीमैट में रखो, स्टॉक्स हो कि म्यूचुअल फंड हो? तो एक बड़ी गलत फहमी जो लोगों को होती है कि म्यूचुअल फंड में फिजिकल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अभी। बस 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है, एक डीमैट है और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। अभी ब्रोकर्स ने बहुत पहले समझ लिया था कि अगर किसी को डीमैट अकाउंट में लाया तो वो निकल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, आपको 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं। बिल्कुल, यस। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाले लोग हैं उनको इंसेंटिवाइज कर लो, पुश कर लो, आप डीमैट में आओ, ताकि आप उनको काइंड ऑफ लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि इन्वेस्टर्स खुद जागरूक होने चाहिए और SOA में ही, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ही यूनिट्स रखने चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि यार एक व्यू में सब कुछ आता है,
स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। तो आजकल जो कैश आता है कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट, उसमें तो सब कुछ आता है, क्या ज़रूरत है कि बिल्कुल। सो जस्ट टू ऐड, तो हम लोगों ने जब MF ऑनलाइन बनाया ना, तो हम लोगों ने उसको रखा है नॉन डीमेट बेस्ड, कैश बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, एंड नॉट जस्ट स्टॉक्स। एक्चुअली ना, आप नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, आप स्टॉक अपलोड कर दो, आपने इंश्योरेंस जहाँ से लिया है वो अपलोड कर दो, आपने कुछ भी एंट्री करनी है आपको उसको एंट्री कर दो। सो मेरे ख्याल से वाई मी, आई थिंक देयर हंड्रेड्स ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स विच ऑफर दिस यूनिफाइड व्यू। तो वो तो एक मिसनॉमर बन गया है कि आपको ना सब डीमेट में रहेगा तो सब कुछ डीमेट में दिखेगा। एनीवे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड तो डीमेट में ये अपना RTS देता ही देता है, देता ही देता है। सो और आज जो टेक्नोलॉजी आई है अकाउंट एग्रीगेटर, वो तो सारे फाइनेंशियल एसेट्स को आपको एक साथ देता है, हाँ व्यू देता है। यस, इवन सम ऑफर बैंक्स आल्सो कि आपका अकाउंट्स में भी पैसे कितने पड़े वो भी आपको दिख जाएगा मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे। करेक्ट। बट ये FNO वाला जो घोड़ा है ये रुकेगा कब और रुकेगा कैसे? सो हाउ डू वी गेट ऑफ दिस हॉर्स ऑफ दिस डेरिवेटिव ट्रेडिंग FNO मार्केट? अभी ना मैंने इनफैक्ट लेटेस्ट न्यूज़ ये जेन स्ट्रीट वाला, जेन स्ट्रीट ने आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन इंडस्ट्री की किसी एंटिटी ने 4,600 करोड़ जमा कर दिया ये कहने के लिए भाई मुझे तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है। सो हाउ डू यू सी दिस एंड वेयर डज रिटेल इन्वेस्टर गेट कॉट, और वो बचे कैसे इससे? उसी दिन एक जर्नलिस्ट ने ET नाउ के जर्नलिस्ट ने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी एक उबर ड्राइवर के साथ कि जिसने साल में कुछ 1.5 लाख कमाए थे गाड़ी चला के, रोज मेहनत करके, और उतने ही F&O में गंवाए थे। और वो कह रहा था कि अब तो नहीं करूँगा लेकिन लोग फिर भी सीख सकते हैं। मतलब तब तक उसको ही वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि F&O में आप लॉस ही करने वाले हो। मतलब इस तरह का वो सिस्टम बन गया है। तो आई थिंक कि अनलेस सेबी टेक्स सम एक्शन, और थोड़ा बहुत एक्शन उन्होंने लिया कुछ महीनों पहले, लेकिन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है वहाँ पे। जस्ट टू ऐड, मैंने एक छोटा सा ना उस पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज़ किया था, तो मैं कंपेयर कर रहा था ग्लोबल मार्केट से। तो जो सबसे बड़ा मार्केट है NYSE में, करीबन वो $35 ट्रिलियन का बाजार है। अपना जो बाजार है वो करीबन $5 ट्रिलियन का बाजार है। तो अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 20% ही है उसके ग्लोबल सबसे बड़े मार्केट के 20% है। इसके बावजूद भी दुनिया का 60% 70% डेरिवेटिव ट्रेडिंग हमारे यहाँ होता है। सो मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई वहाँ का रेगुलेटर ने अभी तक देखा नहीं इस चीज़ को क्या कि भाई ये भी हम भी अलाउ कर दें। तो यहाँ पे उसने अलाउ नहीं किया और हमने यहाँ पे अलाउ किया। तो एज यू राइटली सेड, आई थिंक रेगुलेटर विल नीड टू सिट बैक एंड सी, मतलब कहीं हम वो फ़ी कमाने के चक्कर में हम अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक तो हमारी ही है, पैसा तो हमारे ही यहाँ से कहीं पे जा रहा है प्रॉफिट बन के। वो एक काइंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। अगर जेन स्ट्रीट फॉरेन से आके पैसा कमा रहे और हमारे लोग लूज़ कर रहे तो करेक्ट, दैट नीड्स टू बी प्लग्ड। सर आप कुछ बताओ, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। यस, सो मैं ऐसा बोलूँगा ना कि वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड मैंने देखा। सो आई वर्क विद कंपनी कॉल्ड आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड विच इज़ लाइक obviously it works like an MNC, but वो एक बाबू की कंपनी है। Then I work with another broker company। तो तभी उस ज़माने में ना सारे के सारे ब्रोकर ने म्यूचुअल फंड कंपनी खोल रहे थे, बिकॉज मेरा बहुत सिंपल कहना है उस पर, एंड पीपल कैन अगेन डिस्प्यूट दिस, कि क्या होता है ना, ब्रोकिंग में जब आपके डीमैट में शेयर्स पड़े होते हैं ना, उस पर कोई नहीं कमाता है। वो डीमैट के शेयर्स अगर म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो जाएंगे ना तो सब लोग कमाता है उस पर। उस दौर में ना सब के सब ब्रोकर्स को ना एक इच्छा थी कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी बन जाए। सबको ये इच्छा थी। कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट आई वुड से, एंड आई वाज हैप्पी टू वर्क विद मोतीलाल ओसवाल AMC, एंड दे वर, आई वुड से, पायनियर्स इन मेनी थिंग, पायनियर्स इन लॉन्चिंग ETFs। सो हम लोगों ने मल्टीपल ETFs लॉन्च किए, M50 विच वॉज लाइक लार्ज कैप ETF, M100 मिड कैप ETF, देन वी ऑल्सो लॉन्च NASDAQ ETF। So that was like, and I would say the biggest investor at that time also was an Indian star. Please guess. Please guess who is that star? Comments में आप डाल सकते हो कुछ नाम. Yeah, and you know, I got a call one day sitting in office. A distributor of mine called me कि a big fund manager wants to invest some amount of money into this ETF. I said it's not possible because there's something called creation unit size. क्रिएशन लॉट में जब तक वो बाई नहीं करेंगे नहीं होगा। इसे नो, आपको पता नहीं है इन्वेस्टर कौन है। आई सेड बॉस नहीं कर सकते हैं। एंड देन गेस व्हाट, आई वुड से प्रोबेबली इज इंडियाज बिगेस्ट फंड हाउस CIO कॉल्ड अप
and then he was explained properly and he bought not just 1 but 2 unit size of ETF. But yes, I think that was very revolutionary and very way ahead of time. ETF अब famous होने लगे हैं, हालांकि उसमें अभी भी issues हैं, like liquidity का issue है, there is no market maker को incentivize कैसे करें वो भी एक issue बना हुआ है. But then that was a journey which I saw. I also worked with the company. सर आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ. उसी ETF का तो उस टाइम मैं भी थोड़ा मेरे डैड को हेल्प करा था इन्वेस्टमेंट करने में. आई स्पॉटेड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक ETF एंड मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत एलोकेट, सो 5 lakhs ऑफ माई डैड आई इन्वेस्टेड इन दैट. उसके बाद जिस तरह से कंपाउंडिंग हुई है उसमें, आई थिंक इट्स प्रोबेबली मोर देन 20%. Yes. And he has, I mean, I have made many mistakes in my investing life, but I'm most proud of that decision. And I'm so glad that Motilal made this option available to us so long ago. Yes, yes. जब भी इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, कुछ के तो देख भी नहीं रहा था. तो दैट्स व्हाट आई सेड ना कि ट्राई तो सबने किया, बट मोतीलाल ओसवाल जैसा ना बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो सके जो कि नाउ सर्विंग सो मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड लॉन्चिंग सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो दैट वाज वन जर्नी विच आई ऑलवेज रिलिश अपन कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें. Then I moved to Principal Mutual Fund, again global, very high standard fund house, probably way ahead of its times in India. बहुत सारे initiative लिए especially sales and marketing में, but somehow they could not and they exited. And then I moved to LIC Mutual Fund, now almost like a PSU Mutual Fund. तो नील जब मैंने देखा ना कि यार मैंने ना एक इंटरनेशनल में काम कर लिया, देसी में काम कर लिया, सेमी PSU में काम कर लिया, तो अब क्या. सच बोलता, मैंने ना पूरा गैमेट देख लिया म्यूचुअल फंड का. मैं बोला यार हो गया, अब सब सीख लिया मैंने. नाउ लेट मी बिकम अ वेल्थ मैनेजर. सो मैं देन आई केम टू अदर साइड ऑफ द बिजनेस. और मैं बोलूँ ये अभी 1 साल होने को आया है इस अदर साइड ऑफ द बिजनेस में. एंड ये हर दिन लर्निंग है, कभी कभी सरप्राइजिंग है, कभी कभी शॉकिंग है. सो आई टेल यू इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक केस स्टडी. अभी मेरे पास एक HNI इन्वेस्टर आया. Now HNI investors availed facility of many wealth managers, bank wealth managers, national distributor wealth manager. You'll not believe उसके पास 26 कैटेगरी में 76 schemes है. So that's so unique about it, and we had actually और अगर मैं stocks का वो common stock portfolio निकालूँ तो मेरे ख्याल से ना उसके पास वो पूरा BSE 500 है, कुछ बचा नहीं उसके पास. उसने पूरा दुकान ही खरीदा, पूरा दुकान उसने खरीद लिया कि बाजार किधर भी चलेगा मैं चल पड़ूंगा. और लोग समझते हैं इसका जो बैड इफेक्ट है कि आप एक एक्सपेंस रेशियो ऐड कर रहे हो लेकिन आपका पोर्टफोलियो वो पैसे भी बन जाता है. 500 स्टॉक तो पूरा मार्केट हो गया. यस. सो एज यू राइटली सेड इन द बिगिनिंग ओनली कि 5-6 फंड्स सफिशिएंट है किसी के भी पोर्टफोलियो को ग्रो कराने के लिए. इनफैक्ट आई टेल यू वन मोर केस. आई वॉज इन गोवा. नाउ गोवा के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम गए थे कि भाई सर हमारा प्रोडक्ट भी आप इंक्लूड कीजिए. बोले लव यार नहीं कर सकते इंक्लूड. मतलब क्यों नहीं कर सकते. LIC में जब मैं था तो मैं गोवा में था, वहाँ पे गया मैं उनको मिलने के लिए. तो बोले सर मैं नहीं, उन्होंने बोला नहीं कर सकता. मतलब क्यों नहीं कर सकते. बोला कि मतलब इन हिज वर्ड्स बोला अब तो हमको हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बचाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जब आते गए हमने आपका फंड लिया उसके पोर्टफोलियो में डाल दिया. तो मोटा मोटी हमारे हर इन्वेस्टर की हालत ऐसी हुई कि सबके पास 15-15, 20-20 फंड है और जो नए वेल्थ मैनेजर आ रहे हैं वो पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं और वही सवाल करते हैं कि सर आपका पोर्टफोलियो तो कहीं जा ही नहीं रहा है. सो समहाउ ये जो चीज़ है ना इसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब लोग पूछते हैं मुझे, मैं कहता हूँ कि अगर बैंक RM का कॉल आता है ना कि सर मैं घर आने वाला हूँ, आप कह दो कि मत आओ कृपा करके मत आओ. तो आपको मतलब एमडीज वही कहते थे, मतलब जब आप AMC में थे कि आप मत आओ. हाँ तो अभी भी मैं वही कहता हूँ लोगों को. अभी मैं बहुत सारे दोस्तों को मना कर देता हूँ भाई तुम मत आओ. अगर आओगे तो अभी क्या होता है ना कि लोग आएंगे फिर चाय पानी पियेंगे, चाय पानी पीने के बाद फिर बात तो करेंगे भाई धंधे की कि भाई मेरा एक अच्छा सा फंड आया हुआ है आप देख लो. तो इसके अभी मजबूरी में बोलना पड़ता है भाई तुम चाय पीने भी मत आओ क्योंकि तुम आओगे फिर बात निकलेगी तो फिर कुछ ना कुछ सर कुछ एलोकेशन तो दे दो हमको. बिल्कुल. तो वो आई थिंक इन्वेस्टर ऑल्सो इज नाउ बिकमिंग स्मार्टर. दैट्स व्हाट आई हैव सीन ऑल्सो. दे आर बिकमिंग स्मार्टर. दे आर कमिंग टू अस, पीपल लाइक अस कमिंग टू मी कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है इसको देखो कैसे है क्या कर रहा है. एंड एज आई सेड टेक का ज़माना है तो हमने इतना कुछ टेक इनेबल किया है कि आप पोर्टफोलियो अपलोड करो, n नंबर ऑफ रिपोर्ट आपको वहीं पे मिल जाएंगे. तो मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है.
एंड नॉट इट्स नॉट एप्लीकेबल टू अदर पोर्टफोलियो, इट्स एप्लीकेबल टू माई पोर्टफोलियो ऑल्सो। भाई मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ पे दिखेगा उसको कि भाई आपने बताया था और ये ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, सो एटलीस्ट यू विल टेक करेक्टिव एक्शन एट राइट टाइम। सो दिस इज अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉस अभी भी ना, और मैं पहले भी बोलता था एक्चुअली कि हम लोग ना इन्वेस्टर एजुकेशन की बात तो बहुत करते हैं, बट हमने कहीं ना डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन की बात नहीं की है। ये सब ना प्रोडक्ट लॉन्चेस जब होते हैं ना तो प्रोडक्ट की मीटिंग होती है, उसमें प्रोडक्ट को बेचना कैसे है वो सिखाते हैं। हमने भी वही किया है। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया, भाई ये देखो इसको बेचोगे कैसे, की सेलिंग पॉइंट्स वही बता के छोड़ देते। अरे भाई तुमने कभी ये बात किया कि भाई इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, सो उसके गोल्स क्या हैं, हाउ डू यू लिंक अ प्रोडक्ट टू हिज गोल, हिज और हर गोल, वो हमने नहीं किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे और भी गैप है, और भी स्पेस है, और मैं तो कहूँगा कि और भी अच्छे नॉलेजेबल लोग आए इस स्पेस में, क्योंकि ना उसको कैटर करने की ज़रूरत है। ऐसी इंडिया का पॉपुलेशन इज़ ग्रेइंग पॉपुलेशन, इज़ नॉट जस्ट ग्रोइंग, इज़ ग्रेइंग पॉपुलेशन ऑल्सो। और हमने एक बहुत बड़ा संकट देख रहे हैं कि हाउ विल पीपल फीड देमसेल्फ आफ्टर रिटायरिंग। सो this is one space which I like this space too much, because now I can actually feel, अभी तक frankly ना हम लोग distributors को empower कर रहे थे, now my job is to empower investors. So all my talks, social media, I don't sell a product, I just try to empower investor. बिल्कुल, that's what I do. Great, thank you so much, love. Thank you. Now Neil, I have some rapid fire questions for you. So I'll use paper, so please allow me. ये तो सरप्राइज हो गया, ये तो मुझे पता नहीं था। Yeah, मतलब very simple but yes. Okay. So index fund or flexi cap fund? Flexi cap, mostly flexi cap, but some cases index. Okay. Gold ETF or sovereign gold funds? Gold ETF, because sovereign gold bonds have stopped coming. Pension via NPS or mutual funds? Pension via NPS mostly. Any book or any tool which change your outlook towards personal finance? I'll tell you a person who changed my outlook towards personal finance, and that is Dhirendra Kumar of Value Research. He's one person to be followed. He speaks the truth no matter what. Buy a house or stay on rent? Complicated, but in most large Indian cities like Mumbai, where housing is so overpriced, stay on rent. Support parent versus save for retirement? No, my parents will throw me out of the house. Both. Children education versus own retirement? I have no children, so I'm going to be a little bit biased here, but it's a balancing act. State government job versus high paying private sector job? I think जिनकी genuine public service की mentality है, they should be in state government, otherwise private sector. Gold and property versus financial assets? For sure financial assets, and you can invest in gold through and property now through financial assets. DIY versus financial advisor? Both, it depends on the person. Now NRIs, shall they come back or settle abroad? I think all said and done, India is changing for the better despite all of our issues. So do look at coming back. And lifestyle spending versus saving? बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मेरा फ्रैक्चर हुआ था 2 साल पहले, एंड आई रियलाइज कि डजेंट मैटर इफ आई हैव 1 crore इन द बैंक और 5 crores, इफ माई फुट वोंट अलाउ मी टू ट्रैवल एनीवेयर, मैं उसका करूँ क्या? करेक्ट. सो deferred spending versus current spending? Mixture, but again people are going a little overboard with current spending these days because of social media, तो सेव तो बिल्कुल करना चाहिए. So one last question, ये जो सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो so whom should we follow, these influencers or financial advisors? इन्फ्लुएंसर्स का मोटिवेशन समझना चाहिए, उनका मोटिवेशन की लाइक्स और ट्रेंड्स कैसे कैप्चर करना, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है. एडवाइजर्स आर फॉर सीरियस बिजनेस. Okay, great. Thank you so much, Neil. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure.